Good afternoon, students. Today we are doing chapter 3 from section C, Sparrows. It is written by K.A. Abbas. This story is based on the idea that nobody is bad by birth. In our society, we know there are two types of people, good and evil. So many times our parents said that don't make friendship with that person, he is not good. Sometimes they say that she's a good girl, he's a good boy, make friendship with him. So nobody wants to talk to evil person or bad person. But is that person bad by birth? No, nobody is bad by birth. Only the circumstances made him good or bad. What type of treatment we take from the society, from the family, we are like that. If everybody treat good with us, respect with us, then we are good. And if we are treated badly, then obviously will become bad. So this is the story of a peasant, किसान जिसे हम बोलते हैं, named Rahim Khan. So Rahim Khan is the hero of our story. Rahim Khan had two ambitions. What is ambition? बहुत हमारी ज़्यादा इच्छा होना है ना, that is called ambitions. So this is very important question, and so many times you'll see it in the exams that what were the two ambitions of Rahim Khan. Rahim Khan had two ambitions. First, he wanted to join a touring circus. सर्कस आपने देखा ही है ना, वो घूमती रहती है, कभी एक सिटी में कभी दूसरी सिटी में. That's why it is called touring circus. And so he wanted to join the touring circus, but according to his father, doing work in the circus is low. It's below the dignity of their family, so his father didn't allow him to go to the circus. Secondly, he was in love with a Hindu girl, Radha. As you know, Rahim Khan, that means he was a Muslim boy, and Radha was a Hindu girl. So this was also not acceptable by the society and by his family. So his father didn't allow him to marry the Hindu girl. So what he do? His father went to Radha's father. He was a businessman, you can say he was a shopkeeper. He said that you should marry your girl as soon as possible. So Radha was married to an old, middle-aged, not old, middle-aged Bania, and she went away. And here Rahim Khan's father also married him to a Muslim girl against his wishes. So in this way both his ambitions were not fulfilled. वो दो ही चीज़ें चाहता था. एक तो सर्कस में सर्कस ज्वाइन करना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा एज अ यूथ, वो बहुत अच्छा जो एक स्पोर्ट्समैन था, कबड्डी खेला करता था, रेसलिंग बहुत अच्छी करता था, डाइविंग यानी कि गोते लगाना है ना, पानी में ऊपर से छलांग लगाना नीचे. तो पूरे आसपास के विलेजेस में कोई उस जैसा नहीं था. एंड ही वॉज वेरी चेयरफुल बॉय, हंसता रहता था, खुश रहता था, दूसरों को भी खुश रखना था. तो ये दोनों जब उसकी विशेष जो हैं उसके फादर ने पूरी नहीं होने दी, उस सोसाइटी ने पूरी नहीं होने दी, तो वो एक कैसा पर्सन हो गया, हार्ड हार्टेड. उसको हर चीज़ जो है वो बुरी लगने लगी. वो हमेशा खुश रहता था और वो हमेशा जो है गुस्से में रहता था.
इस गुस्से में रहना शुरू कर दिया उसने। तो वो कैसा हो गया, ही हार्डन्ड इनटू अ पीस, जैसे एक पशु होता है, वो किसी पे दया नहीं करता था। और उसका जो दिल है जिसमें इतना प्यार था फॉर राधा एंड फॉर एवरीवन, हिज हार्ट वाज फिल्ड विद बिटरनेस, उसमें बहुत सारी कड़वाहट आ गई। तो ही क्वारल विद एवरीवन इन द विलेज, वो सारे लोगों के साथ झगड़ा करता था। बच्चे उसको देख के भाग जाया करते थे, वो आता था तो सारी विस्परिंग करना स्टार्ट कर देते थे कि हियर कम्स द हार्ड हार्टेड पर्सन, हियर कम्स द बीस्ट, वो ऐसा है वो वैसा है, उसने मेरी घोड़ी को मारा। एक एक जना कह रहा है उसने मेरी घोड़ी को मारा, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसकी घोड़ी को मारा क्यों, क्योंकि उसके बच्चों ने उनकी घोड़ी को रहीम खान के खेतों में चरने के लिए भेज दिया था। तो वो मारेगा नहीं जब उसकी फसल खराब होगी। तो सारे गांव जो है वो उससे बात नहीं करता था। क्यों? क्योंकि आफ्टर मैरिज वो बहुत ही अजीब किस्म का इंसान बन गया। तो देखा आपने सर्कमस्टांसेस कैसे थे, पहले वो इतना अच्छा था, लेकिन जब वो दो ही इच्छाएं थी उसकी और वही पूरी ना हुई तो वो कैसा बन गया। और उसके बाद इस तरीके का बनने के बाद उसने किया क्या, वो यहीं पे बस नहीं हुई, उसने रोज़ अपनी वाइफ को पीटना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि ये सिंबल है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ है ये उसका प्रतीक है। उसकी वाइफ क्यों मारता था उसको? क्योंकि वो वीक थी, है ना, जो वीक होएगा उसी पे गुस्सा निकलता है। ठीक है ना, हम कहते हैं हम बहुत गुस्से वाले हैं, हम बहुत किस पे गुस्सा निकालते हैं? जो हमसे वीक होता है। जो हमसे स्ट्रांग होते हैं उसके आगे तो हम चुप करके बैठ जाते हैं, स्माइल स्माइल दे के सॉरी सॉरी करके आ जाते हैं। तो ये रहीम खान जो था ये कैसा हो गया, ये अब इस तरीके का हो गया कि इसने रोज़ अपनी वाइफ की पिटाई करनी। इसके दो बच्चे हुए, नूरू और बुंदू। नूरू और बुंदू के साथ भी ये बहुत इल ट्रीट करता था, उनकी भी पिटाई किया करता था। और अपने बैल, उसकी जो बुलक्स थे, उनको भी ये बहुत पिटाई करता था, उनके कहीं ना कहीं जख्म हुए ही रहते थे। ये इतनी पिटाई करता था, इतना जानवर बन गया हुआ था। और गांव में कोई भी इसको बुलाता नहीं था। तो इसकी वाइफ की तो आदत हो गई थी, ये घर आएगा उसकी पिटाई होएगी। मतलब एक रूटीन बन गया हुआ था। तो एक दिन क्या हुआ कि इसका एक बेटा भाग गया घर छोड़ के। उसके कुछ दिनों बाद इसका दूसरा बेटा भी भाग गया, लेकिन इसकी वाइफ जो थी फिर भी इसके साथ रहती रही। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि हद हो गई, इसकी वाइफ भी जो थी उसको छोड़ के चली गई। और वो कहाँ गई? अपने ब्रदर के पास। इसको देने के लिए, मैसेज देने के लिए गांव की एक औरत ना वो आई। वो उसने बोला, रहीम खान। वो बोला, क्या है? हाँ, तुम्हारी वाइफ। कहता, भाग गई। मतलब उसको पहले ही पता था कि मैं इसके साथ इतना बुरा बर्ताव करता हूँ कि एक ना वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो वो कहती कि नहीं, भागी नहीं है, वो सिर्फ अपने भाई के पास गई है। कहता, मुझे पता है। और उसको भगा दिया उस औरत को। अब ये अकेला इस घर में जो है, अपनी एक हट थी उसके पास, उसमें रहना शुरू कर दिया। ये धीरे धीरे इसको लगा कि जिस वाइफ के साथ मैं इतना बुरा बर्ताव करता था, इतना बुरा बिहेव करता था, उसने तो मेरे घर ही भरा संभाला हुआ था। जब भी हमारे पास कोई होता है तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं चलता, उसकी वैल्यू का पता नहीं चलता। लेकिन वैल्यू का पता कब चलता है? जब उसकी एब्सेंस होती है ना। हमने कई बार ये देखा है ना, हम सब्जी खा लेते हैं, हाँ ठीक है, हमें नहीं पता कि इसमें नमक भी डाला हुआ है। लेकिन जिस दिन सब्ज़ी में नमक ना डाला हो ना, तब नमक की वैल्यू का पता चलता है। उसी तरीके से इसको भी लगा कि अरे उसने तो मेरा सारा घर संभाला हुआ था। जब मैं घर आता था तो घर में लालटेन जला के रखी होती थी, मेरे मुंह हाथ धुलवाती थी, मुझे टॉवल देती थी, मुझे खाना देती थी। लेकिन आज घर में कुछ भी नहीं है। खुद ही वो अपना खाना बनाता था, थका टूटा आना वहाँ से खेतों से और आके अपना खाना बनाना। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसने एक दिन देखा, वो लेटा हुआ था तो उसके घर की रूफ पे एक नेस्ट था। अंदर की तरफ हट में एक घोंसला बना हुआ था। और उसने एक स्टूल पे चढ़ के देखा तो उसमें दो छोटे छोटे बच्चे। वो उस नेस्ट को तोड़ना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि उन स्पैरोज़ की जो मदर है
है ना, वो इसको फाइट करने पे पड़ रही है, छोटी सी चिड़िया, और वो इसको अपने बच्चों के पास भी नहीं आने दे रही। तो इसको लगा कि कितना प्यार करती है ये जानवर, ये यानी ये बर्ड्स होके भी अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि मेरे साथ, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे साथ फाइट करने को तैयार है। तो इसके मन में आया कि मैंने अपने बच्चों के साथ क्या किया है, मैं तो उनको हमेशा मारता ही रहता था, मैं तो अपनी वाइफ के साथ हमेशा पिटाई उसकी करता रहता था। तो इसका हार्ट फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुई, इसको उनके साथ प्यार होना शुरू हो गया। तो इसने उनको फीड करना शुरू किया स्पैरोज़ को, और उनके साथ बहुत इसकी अटैचमेंट हो गई, और इसका हार्ट भी जो था वो फिर से चेंज होना शुरू हो गया। इसने उन दोनों छोटे बच्चों का नाम अपने बच्चों के नाम पे नूरू और बुंदू डाला, और उनके साथ बातें करता रहता था, उनको खाना बनाता था तो उनको भी दे देता था थोड़े से रोटी की थोड़ी थोड़ी बुर्कियाँ। तो इस तरीके से इसका जो है मन फिर से ठीक हो गया। जो प्यार है वो अच्छा भी बना देता है इंसान को और बुरा भी बना देता है। इसका मन फिर से बदला। अब ये चाहता था कि मैं विलेज के बच्चों को भी बुलाना शुरू करूं, उन्हें भी प्यार करूं। ये जब आता था ये बुलाने की कोशिश करता था, लेकिन बच्चों के दिमाग में इसका इतना डर था, इतना आतंक था कि ये बुलाता था और बच्चे फट से गायब हो जाते थे, भाग जाते थे वहाँ से, और इसको कोई नहीं बुलाता था। एक दिन क्या हुआ कि ये लेटा हुआ था तो बारिश आ गई। बारिश आई तो इसने देखा कि मेरी छत जो है वो टपक रही है। इसकी हट की जो रूफ था वो टपक रहा था, वहाँ पे एक होल था, और पानी कहाँ उस होल में से कहाँ पड़ रहा था, उसी नेस्ट में। तो इसको लगा कि ये तो घोंसले में पानी पड़ रहा है, इनके बच्चों को क्या होगा, वो तो भीग जाएंगे। तो ये बारिश में ही बाहर गया, सीढ़ी लगाई, और इसने उस रूफ की मुरम्मत करी, उसको ठीक किया। और बारिश में भीगने की वजह से इसको कोल्ड हो गया, पूरी रात ठंड में रहा। सुबह तक तो इसको बुखार हो गया बहुत ज़्यादा, और बुखार में ये खेतों में भी ये जाना इसने छोड़ दिया, नहीं जा पाता था, ना कुछ बना पाता था, खा पाता था, ना ही ये बाहर जाता था। गांव के लोगों ने देखा कि बड़े दिनों से इसकी झोंपड़ी का दरवाज़ा बंद है, ये बाहर नहीं निकला। तो उन लोगों ने ऐसे पीप करना शुरू किया ना, छोटी सी जो दरार होती है दरवाजे में से देखना शुरू किया। तो ये लेटा हुआ उन बर्ड्स से बातें करता रहता था, नूरू बुंदू हु विल टेक केयर ऑफ़ यू, कि तुम लोगों का कौन ध्यान रखेगा मेरे बाद। तो लोगों ने बोला पता नहीं इसको क्या हो गया। उन्होंने जल्दी से इसकी वाइफ को बुलवा दिया, तो उसकी वाइफ भी आ गई। जब वो आई, दरवाज़ा खोला, अंदर गया, तो ये मर चुका था। He was lying dead on his charpai, and all the four sparrows were fluttering there. वो चारों जो है वहाँ पे फड़फड़ा रहे थे। तो ऐसे इसका एंड हुआ। और कहना क्या चाहता है इसमें राइटर कि जैसे इतना लविंग पर्सन था, इतना अच्छा पर्सन था, और इसकी एम्बिशंस पूरी नहीं हुई तो ये कैसा बन गया। और उसके बाद इसकी बीसली जो था, इसका जो ये जानवरों जैसा बन चुका था, उसको फिर दो बर्ड्स ने दोबारा से इसको चेंज कर दिया, और ये फिर से एक अच्छा इंसान बन गया। तो प्यार से हम किसी भी इंसान को अच्छा बना सकते हैं। तो ये लेसन, आपके पास बुक्स हैं तो उसमें रीड करने की कोशिश करो। कोई वर्ड समझ में ना आए, कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछो, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो करेंगे, मैं आपको सेंड करूँगी, आप लोग नोट कर लेना। बाय बाय।